عوام کے لیے خوشخبری، بجلی سستی، اگلے ماہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان۔ وزیر اعظم نے مانسیرا میں 3 بڑے ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔ نعرے بازوں کو چھوڑے، یہاں تو یہ سب لوگ ٹانگیں کھینچنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں اگر پاکستان کی ترقی کی راہ میں حائل ہو گئے تو یہ عوام تمہیں اٹھا کے باہر پھینک دیں گے۔ جو قدم اٹھانے اور سوچ سمجھ کے اٹھاؤ۔ وزیر اعظم کی سیاسی مخالفین کو وارننگ، کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں بڑے منصوبے نون لیگ نے شروع کیے، نیا پاکستان بنانے والے کہاں ہیں؟ پاناما کمیشن پر معقول تجاویز آئیں تو دیکھیں گے۔ ہمارا زبردست پروٹیسٹ ہوگا رائیونڈ کے جانے سے پہلے۔ یہ رائیونڈ کی تیاری ہو رہی ہے، ویسے یہ قومت ہے، یہ نیٹ پریکٹس ہو رہی ہے رائیونڈ سے پہلے۔ کپتان لاہور میں نیٹ پریکٹس کے لیے تیار، کہتے ہیں حکمرانوں نے پاناما لیکس پر سچ نہ بولا تو پھنس جائیں گے۔ وزیر اعظم الزامات کا جواب دینے کے بجائے جلسے کر رہے ہیں، پارٹی رہنماؤں میں اختلافات ختم کرانے کی تصدیق۔ امریکہ اور پاناما میں بینک اکاؤنٹس کی معلومات شیئر کرنے کے معاہدے پر دستخط، عوامی کھاتوں کی تفصیلات کے تبادلے کا فیصلہ۔ موجودہ پروگرام ستمبر میں ختم، پاکستان IMF کے سہارے سے آزاد، ڈائریکٹر IMF کہتے ہیں ملک اب امداد کے بغیر بھی گزارا کر سکتا ہے۔ آرمی چیف کا جہلم میں جنگی مشقوں کا معائنہ، جنرل راحیل شریف کا پاک فوج کی پیشہ ورانہ تیاریوں پر اظہار اطمینان۔ را کے پاکستان مخالف سلیپر سیل ملیشیا اور جنوبی افریقہ سے نئی دلی منتقل، محمود صدیقی، ظفر اور خلیل بھارت پہنچ گئے۔ کینیڈا سے صفدر باقری پیغام کراچی بھجواتا ہے، حساس اداروں کی ای میلز پر نظر۔ لینڈ کریون سے آئے تھے جو رضا ہارون اور بابر غوری کے ذریعے وایا دبئی فائدہ قبول کو ڈیلیور ہوئے۔ عمران فاروق قتل کیس کے ملزم خالد شمیم نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا، متحدہ قائد کی طلاق کا معاملہ طے کرانے کے لیے رضا ہارون اور بابر غوری کے ذریعے 22 کروڑ روپے بھجوانے کا الزام۔ عمران فاروق قتل کیس کے ملزم خالد شمیم کی اڈیالہ جیل میں ویڈیو ریکارڈنگ، متحدہ سیخ پا چودھری نثار نے بھی نوٹس لے لیا، تحقیقات کا حکم، 2 روز میں رپورٹ طلب۔ کراچی کے مومن آباد میں انسانیت سسکتی رہ گئی، غیرت کے نام پر بہن کو قتل کرنے کے ملزم کا 5 روزہ ریمانڈ، باپ نے بیٹے کو بچانے کے لیے معاف کر دیا۔ سانے توجہ بھی صحیح نہیں ہوتے، سمجھ گیا، کام بھی غلط کرتے، سمجھ گیا، تو باپ تو اس کو معاف کرنا چاہیے کیا؟ ابھی میں اس کو معاف کرتا ہوں، وہ بھی میرے بیٹی، یہ بھی میرے۔ کوئٹہ کے 16 بچوں کے پمز اسپتال اسلام آباد میں ٹیسٹ، 13 سینئر ڈاکٹروں پر مشتمل بورڈ قائم، ویڈیو لنک پر برطانیہ کے طبی ماہرین سے مشاورت کا فیصلہ۔ مظفر گڑھ میں 2 ججز کے گھروں میں کنڈے ڈال کر بجلی کا استعمال، میپ کو حکام نے مقدمہ درج کرانے کے لیے درخواست دے دی۔ بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، لیکن یہاں کے جو نظارے اوسم، بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے ہمیں ادھر یہاں پر۔ سرسبز پہاڑوں میں آبشار، جھرنوں کی جھنکار، پانی ٹھنڈا ٹھار، مارگلا کے دامن میں شادرہ گاؤں سیاحوں کے لیے جنت، شام کا گہما گہم۔ مانسہرہ جلسے میں وزیر اعظم فرنٹ فٹ پر کھیلے، سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤ، مخالفین کو وزیر اعظم نے خبردار کر دیا۔ پاناما کمیشن پر تجاویز آئیں تو دیکھیں گے، یہ کہنا تھا وزیر اعظم نواز شریف کا۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ خیبر پختونخوا میں بڑے منصوبے شروع کیے اور سوال کیا کہ نئے پاکستان بنانے والے کہاں ہیں؟ مانسیرا میں جلسہ عام، وزیر اعظم کی مخالفین پر یلغار، اپوزیشن کو سوچ سمجھ کر بولنے کی للکار، کہتے ہیں دھرنوں کا ایجنڈا نہیں، پاکستان کو بہتر ملک بنانے کا عزم لے کر نکلے ہیں۔ ہم پورے پاکستان کی ترقی کا ایجنڈا رکھتے ہیں، عوام کی خوشحالی کا ایجنڈا رکھتے ہیں،
बेरोजगारी के खात्मे का एजेंडा रखते हैं, हम धरनों का एजेंडा नहीं रखते। वज़ीर-ए-आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग के मंसूबों का तस्करा किया, नए पाकिस्तान के दावेदारों से सवाल भी कर डाला। KPK के अंदर जितने भी बड़े बड़े मंसूबे सड़कों के और बिजली के, ये सब अल्लाह के फजल करम से 1990 से लेके आज तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने बनाया है। बाकी KPK की जो नई एक नया पाकिस्तान बन रहा है, वो कहाँ बन रहा है, वो किधर है नया पाकिस्तान, कौन बना रहा है? वज़ीर-ए-आज़म का कहना था सिर्फ नारे नहीं लगाते, अमल भी करते हैं। नारेबाजों को छोड़े, यहाँ तो ये सब लोग टांगे खींचने वाले बैठे हुए हैं, लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूँ, अगर पाकिस्तान की तरक्की की राह में हाइल हो गए तो ये अवाम तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे। जो कदम उठाने और सोच समझ के उठाओ, पाकिस्तान की तरक्की में हम आपको हाइल नहीं होने देंगे। ये अवाम की खुशहाली का जो एजेंडा है, इसको तुम्हें सैबोटाज करने की इजाजत नहीं देंगे। नवाज शरीफ का कहना था हुकूमती इक़दामात के बायस मुल्क से दहशतगर्दी खत्म हो रही है, महंगाई की कमर भी टूट रही है। बिजली सस्ती और हाँ, पेट्रोल भी अब महंगा नहीं होगा। वजीर आजम ने आज मुखालफिन को ललकारा ही नहीं, खुशखबरियां भी दी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। वजीर आजम ने बिजली सस्ती करने का भी ऐलान किया। साथ साथ मानसरा और हजारा के लिए गैस समेत कई तरक्याती मंसूबे, हजारा यूनिवर्सिटी को 1 अरब रुपए देने का ऐलान भी कर डाला। लेकिन अपोजिशन के लिए कहीं ना कहीं मामला कंफ्यूजिंग भी है। तनावल गैस मंसूबे के चौथी बार इफ्तिताह पर मुखालफी ने तनकीद की है। 92 और 97 में इसका इफ्तिताह किया गया था, हुकूमतें खत्म कर दी गई। हुकूमती जराए ये कह रहे हैं इसलिए इस बार फिर इफ्तिताह करना पड़ा। 2010 में तीसरे इफ्तिताह के बावजूद पेशरफ्त ना हो सकी थी। बाद में आने वालों ने मंसूबा पसे पुश डाले रखा, यूं 4 बार इफ्तिताह हुआ। तनाउल गैस मंसूबा, वजीर आजम नवाज शरीफ ने संगे बुनियाद रखा तो मुखालिफिन ने कमर कस ली और मंसूबे के चौथे इफ्तिताह को हदफे तनकीद बनाया। सवाल उठे तो जवाब भी मिल गया। हुकूमती जराए कहते हैं कि मंसूबा 1992 में नून लीग ने ही शुरू किया, लेकिन तकमील से पहले ही हुकूमत खत्म हो गई। 1997 में इसहाक डार ने दूसरी बार इफ्तिताह किया, लेकिन फिर नून लीग की हुकूमत पर शब खून मार दिया गया। नून लीग के बाद आने वाली हुकूमतों ने 23 बरस तक मंसूबे को खटाई में डाले रखा। 17 जनवरी 2010 को तीसरे इफ्तिताह के बावजूद भी कोई पेशरफ्त ना हो सकी। वजीर आजम नवाज शरीफ की जानिब से इफ्तिताह के बाद नून लीग की हुकूमत अवामी फलाह के इस मंसूबे की तकमील के लिए पुरज़्म है। पाइपलाइन का कतर भी 12 इंच कर दिया गया है। और अब बात हो जाए कप्तान की नेट प्रैक्टिस की। आपको बताएं कि इमरान खान ने कहा है कि लाहौर का जलसा रायविंड मार्च की नेट प्रैक्टिस है। पहली बार ताकतवर का एहतसाब होगा। जलसे ना करें, सवालों के जवाब दें। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का ये कहना था कि लाहौर का जलसा रायविंड मार्च की नेट प्रैक्टिस होगा। ताकतवर का इंतजाम करेंगे। बेहतर ये है कौन से सच बोले आप। पनामा लीक्स के मामले पर कप्तान फिर वजीर आजम पर बरस पड़े। कहा जलसे करने से सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। मियां साहब खैबर पख्तूनख्वा चले गए। लाहौरियों के सामने आने से इन्हें डर लग रहा है। जलसे करने से और जलसों में 3 दफा एक ही सड़क का फिर से इफ्तिताह करना या फिर से चौथी दफा गैस लाइन पाइप की चौथी दफा इफ्तिताह कर दी, इससे बात नहीं बनेगी। जबरदस्त प्रोटेस्ट होगा। रायविंड के जाने से पहले ये नेट प्रैक्टिस हो रही है। रायविंड से पहले खिताब में कहा कि ICIJ ने वजीर आजम से माफी मांगी, ना नाम हटाया। बेहतर यही है कि वो मासूम सी शक्ल ना बनाएं और सच बोलें। मासूम और मासूम शक्ल बना के तकरीरें ना करें। आवाज़ से जरदारी वो जो है वो है, ये आपको मानना पड़ेगा। वो एक्टिंग नहीं करता। मुझे लगता है कि डीजल भी मियां साहब का साथ नहीं देगा इस बार। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के तमाम विंग्स बहाल कर दिए और साथ ही 8 मई को मुल्तान और 13 मई को फैसलाबाद के जलसों की मंजूरी दे दी। कैमरामैन असगर अली के साथ याकतन सारी, दुनिया न्यूज, लाहौर। इसके अलावा इमरान खान ने जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी, चौधरी सरवर और शफकत महमूद समेत पार्टी के बड़ों के दरमियान सुलह भी करा दी।
लाहौर के पावर शो से पहले पीटीआई में धड़ेबंदी। चौधरी मोहम्मद सरवर नाराज हो गए और अचानक बरतानिया जाने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन इमरान खान ने नोटिस लेकर लाहौर में सीनियर लीडरशिप का इजलास बुलाया और उन्हें मना लिया। ताहम चौधरी सरवर ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कप्तान ने इजलास में जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी, चौधरी सरवर और शफकत महमूद समेत सब बड़ों के दरमियान सुलह भी करा दी। सब में दोस्ती हो गई है, शफकत महमूद और चौधरी सरवर में दोस्ती हो गई है, जहांगीर तरीन और शाह महमूद में दोस्ती हो गई है। तो ये मेरे ख्याल में पैनामा पेपर्स हमारी पार्टी को बड़ा फायदा पहुंचा गए। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि कोई झगड़ा नहीं, चौधरी सरवर तो अपने काम से लंदन जा रहे थे। वो लंदन जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? अपने बेटे की कैंपेन करने जा रहे हैं भाईजान। शाह साहब और चौधरी साहब में सर्द जंग नई नहीं। चंद रोज पहले भी इमरान खान की मौजूदगी में तल्ख कलामी हुई, जिस पर कप्तान इजलास छोड़कर चले गए थे। लेकिन दूसरी यानी मामला कुछ मुख्तलिफ नजर आ रहा है। इमरान फारूक कत्ल केस के मुल्जिम खालिद शमीम ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। खालिद शमीम कहते हैं कि मुत्तहिदा कायद की तलाक की सेटलमेंट की रकम 22 करोड़ रुपए थी और 22 करोड़ रुपए की रकम कराची में जमीनों पर कब्जे से हासिल की गई और जो शरीक थे वो रजा हारून और बाबर गौरी, यानी इन दो अफराद के जरिए रकम दुबई भिजवाई गई, जिसके बाद तलाक की सेटलमेंट हुई। डाइवोर्स का मसला है तो क्या हम कराची के हमने ठेका ले रखा है कि मतलब कि डाइवोर्स की जो सेटलमेंट होती है 22 करोड़ की, तो ये आवाम को खुद सब सोचना चाहिए कि जो 22 करोड़ आए थे वो कहाँ से आए थे। वो 22 करोड़ क्लाइंट क्रेवन से आए थे, जो रजा हारून और बाबर गौरी के जरिए वाया दुबई फायदा कबूल को डिलीवर हुए रजा हारून के थ्रू। फिर सेटलमेंट हुई अदालत के बाहर इसकी और अल्ताफ हुसैन को डाइवोर्स मिली। गुजारिश है मुसलमान साहब से कि वो मतलब कि आवाम को और हक्काम को बताएं कि मतलब कि जब वो डॉक्टर इमरान फारूक की बॉडी लेने मैयत लेने लंदन गए थे राब्ता कमेटी के हमरा, तो अल्ताफ हुसैन ने आपको क्या कहा था, क्योंकि मैं स्कॉटलैंड को और पाकिस्तानी हकाम को बता चुका हूँ कि आप मतलब कि आपको ओपन थ्रेड दी गई थी। जो चीज़ आपने मुझे बताई थी वो मैंने बता दी और मैं चाहता हूँ कि आप भी बताएं, क्योंकि मैं बता चुका हूँ। अल्ताफ हुसैन जब आप लंदन गए थे डॉक्टर इमरान फारूक की मैयत के लिए लेने के लिए, तो अल्ताफ हुसैन ने आपको कहा था कि काम तो अच्छा हो गया है। और इसके रद्द-ए-अमल के जवाब में एमकेएम के रहनुमा बाबर गौरी ने खालिद शमीम का वीडियो बयान बेबुनियाद करार दे दिया। साथ ही सवाल भी उठा दिए। कहते हैं जेल में बंद शख्स की वीडियो कैसे रिकॉर्ड हुई और बाहर कैसे आई, पता लगना चाहिए। ये बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत है, इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। सबसे बड़ी बात है तहकीकात अब इस पे करें ना, आप ये पूछने के बजाय आप अपनी तहकीकात करें। ये वीडियो एक आदमी जो जेल के अंदर है और जो एक कोठरी में है, जो अडियाला में है, ये वीडियो लीक कैसे हुई, किसने करे, उसका मकसद क्या था, वो क्या चाहते थे, क्या उनके मकासद क्या थे, ये तो वहां चेक करें ना। और पता चलाने के लिए वजीर दाखिला ने खालिद शमीम की अडियाला जेल में वीडियो रिकॉर्डिंग का नोटिस ले लिया। वजीर दाखिला चौधरी निसार ने तहकीकात करके 2 रोज में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। पता चलाया जाएगा कि जेल में वीडियो बनाने की इजाजत किसने दी और रिकॉर्डिंग के वक्त इंतजामिया कहाँ थी। तफ्तीश की जाएगी कि वीडियो बनाने में जेल इंतजामिया की मुआवनत तो शामिल नहीं। खबर की दुनिया से मजीद खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बात हो जाए सिपह सलार की। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने जहलुम में जंगी मशकों का मुआयना किया। कहते हैं पाक फौज की पेशावराना महारत काबिल तहसीन है। देखते हैं मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का दौरा जहलम, जारी जंगी मशकों का मुआयना, पाक फौज की बेहतरीन पेशावराना तैयारियों पर इजहार इत्मीनान।
जंगी मशकों में तोप खाना, कॉम्बैट एविएशन और फिजाइया ने भी हिस्सा लिया। जनरल राहील शरीफ ने जंगी मशकों में हिस्सा लेने वाले अफसरों और जवानों की शानदार पेशा वाराना महारत को सराहा। ISPR के मुताबिक जंगी मशकें दुश्मन के हमले को पसपा करने की हिकमत अमली के तहत की जा रही हैं। जेहलम पहुंचने पर कोर कमांडर गुजरांवाला लेफ्टिनेंट जनरल इकरामुल हक ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। अब से कुछ देर कबल खालिद शमीम की स्टेटमेंट दुनिया न्यूज पर आई, कुछ इल्जामात भी लगे। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा रजा हारून हमारे साथ मौजूद हैं। रजा हारून साहब से बात करें। रजा हारून साहब, खालिद शमीम ने यह दावा किया है कि कायद मुत्तहिदा की तलाक की सेटलमेंट में आप इन्वॉल्व थे, 22 करोड़ रुपए दिए। इसकी मैं बड़ी सख्ती से तस्दीक करता हूँ। पैसे अरेंज करने में और दीगर जो इल्जामात इन साहब ने लगाए का हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं है। आई टोटली डिनाई, रिजेक्ट एंड मैं तो उसकी मजम्मत भी करता हूँ इस तरह के इल्जाम। वैसे बाबर गौरी थे? मुझे बिल्कुल कतई इल्म नहीं है कि पैसे कैसे अरेंज किए, कहाँ से अरेंज हुए, क्या हुआ। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम इन्होंने क्यों मेरा नाम लिया है, बट एज फार एज आई एम कंसर्न मुझे पता है कि नाम इसमें इन्वॉल्व हूँ और फैक्ट भी यही है। कहाँ से अरेंज हुआ आई डोंट नो। अच्छा, खालिद शमीम से वाकिफ थे आप? नहीं, मेरी कभी इनसे कभी मुलाकात नहीं हुई है। मैं इनको बिल्कुल नहीं जानता। मैं समझता हूँ इनकी भी कभी मुझसे कोई मुलाकात नहीं हुई है। अच्छा, ये 22 करोड़ में बहरहाल सेटलमेंट हुई थी, इतनी इन्फॉर्मेशन है आपके पास? नहीं, वो तो उनकी सेटलमेंट जो है वो तो वहाँ लंदन में हुई थी। जो भी कोर्ट का सेटलमेंट था उसकी मेरे ख्याल में अमाउंट शायद जो मुझे अभी वेगली याद है जो उस वक्त बताई गई थी वो 1.5 मिलियन पाउंड की थी और वही सेटलमेंट की अमाउंट सेट हुई थी। चलो रजा भाई, यही बता दें कि अल्ताफ साहब की कोई फैक्ट्री भी नहीं है, किसी किस्म का कोई इदारा भी रन नहीं कर रहे, ये कहाँ से दिए सेटलमेंट के पैसे? क्या समझते हैं हम, कहाँ से? मेरे ख्याल में प्रॉपर इसका सवाल जो है ना, क्योंकि ये एक जुडिशियल मैटर था जी जी, और एक वहाँ पे आपको पता है कि पैसे जो है ना वो ऐसे नहीं हो जाते, कैश जमा नहीं होते। तो चूंकि एक जुडिशियल मैटर था, एक कोर्ट ने इसको डील किया है और लंदन की कोर्ट है, तो आई थिंक द बेस्ट फोरम वुड बी कि अल्ताफ हुसैन साहब इसका आके जवाब दें या उनके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे। नहीं, वो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं रजा भाई, वो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं वैसे आपसे एक आइडिया ले रहा हूँ कि आमतौर पे 22 करोड़ रुपए कोई बंदा इतना कोई लैंडलॉर्ड भी नहीं है, उसकी सेटलमेंट हो रही है, या 1.5 मिलियन ही लगा लें, है तो सही इतनी बड़ी अमाउंट, आप क्या समझते हैं कैसे गई होगी? मैं बिल्कुल इससे मैं इससे वो नहीं कर सकता। स्पेकुलेटिव और प्रिजम्पटिव गुफ्तगू कोर्ट मैटर पे हो नहीं सकती, वरना मैं जरूर करता। कोर्ट जो है वहाँ पे पैसे लेते हैं किसी न किसी सोर्स से, फिर वहाँ कैश जमा नहीं होता। तो आई डोंट नो हाउ कैसे हुआ है। तो इसके लिए बेस्ट फोरम जो है मेरे ख्याल में एक बार फिर से दुनिया न्यूज के फोरम से इस बात का जवाब दे दें रजा भाई, एक बार फिर से इस बात का जवाब दे दें, क्योंकि खालिद शमीम की वीडियो दुनिया न्यूज पे ही एक्सक्लूसिवली नशर हुई है। 22 करोड़ रुपए के सिलसिले में आपका कोई मामला इन्वॉल्वमेंट है? आप थे बीच में, दुबई में सेटलमेंट हुई? वंस अगेन मैं कैटेगोरिकली इस बात को ना सिर्फ डिनाई करता हूँ बल्कि इसकी मजम्मत करता हूँ। कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि इस पैसे की अरेंजमेंट करने में और इसमें मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ना मैं खालिद शमीम साहब को जानता हूँ, खालिद शमीम साहब को जानते हैं, ना इन पैसे से कोई ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया आपका रजा हारून साहब। खबर की दुनिया से मजीद खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे। अहम शख्सियत के कहने पर फार्म हाउस और जमीनों पर कब्जे किए, गफ्फार जिक्री को कत्ल करने का हुक्म नहीं माना, साथ काम करने से इनकार पर लियारी में ऑपरेशन शुरू किया गया। उज़ैर बलोच के मजीद इंकशाफात। मौलाना फजल रहमान को मेदे की तकलीफ, मुख्तलिफ टेस्ट के बाद पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद से डिस्चार्ज। और फैसलाबाद के करीबी इलाके चक झुमरा में घर खाली न करने पर झगड़ा, बाप ने बेटी, नवासे और नवासी को आग लगा दी।